we have somebody who is known to be India's youngest stock market analyst and coach, a person who is, I mean, you can look at him in the camera itself and you can figure out that how young he would be. But at this age, he is already the founder CEO of a company called PhD Capital. He has been in the training industry over the last 8 years. He has trained more than 2,500 stock traders and investors, right? And he has been doing the guest lectures and the trainings at various colleges and corporates and the brokerage houses. So that way he brings a very good exposure and a large experience with us today. But what he brings, what makes his approach really impeccable is he keeps saying, "Sir, नए इंडिया को नई ट्रेडिंग टेक्निक चाहिए, वही पुरानी चीजें जो हम सालों साल से पढ़ाते रहे, that won't work, and it needs to be simplified because everybody can't be a researcher, right? So as an investor or as a trader, you need to have things which are very simple to do rather than getting complex things to be done." So that's what his approach is. He says, मैं analysis को, stock analysis को एकदम layman तरीके से सोचता हूँ and I make it very simple, right? So Pradeep has also been awarded as the Entrepreneur of the Year in year 2020. So and he appears at quite a few media channels, primarily in eastern part of the country. Pradeep, a small request. I will request you to keep the talk today in mixing English and Hindi. Use Hindi as much as possible also. थोड़ा बहुत हिंदी जितना आप यूज कर सकते हैं. And to the participants, 3 things that I would say. One, because Pradeep comes from the eastern part of the country, so his accent would be a little Bengali accent. Okay, so that's one. But then if you don't understand a particular word, you can always ask him, not a problem. 2, we have deliberately kept all of you on mute, but that doesn't mean that आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं. You can raise hands using the Zoom button and you can talk to him, or you can write your answers in the chat. Because mute रखा है so that you have clarity of voice when he speaks. Otherwise लोग unmute कर लेंगे तो उनकी आवाज साफ नहीं आएगी. Yes, so that's just these 2 ground rules. And Pradeep, I'm happy to welcome you and over to you now. थैंक यू सो मच सर, सच ए वंडरफुल. आपका आपने इतना अच्छे से मुझे इंट्रोडक्शन किया है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी. एंड थैंक यू सो मच शेयर गुरुकुल को मुझे इनवाइट करने के लिए. एंड इतना सा अच्छा पार्टिसिपेंट सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ राजेश जी, जो पार्टिसिपेंट है सब लोग स्टूडेंट है या फिर सब प्रोफेशनल है? सब ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स. ट्रेडर और इन्वेस्टर. ओके. सो मैं एक चीज में हमेशा बिलीव रखता हूँ कि जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ तो ना हो क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि जब ट्रेनर कोई ट्रेनिंग ही देता है लेकिन वो इंटरेक्शन नहीं होता है. तो मैं ना हमेशा से एक ही चीज करता हूँ, जब भी मैं कुछ बोलूंगा आप लोगों का एक ही काम होगा कि आप अगर मेरे से सहमत हो तो प्लीज टाइम ऑन द कमेंट बॉक्स यस, नहीं हो तो भी चलेगा, नो बता देना डायरेक्टली. तो ऐसे करके क्या होगा ना, सेशन और भी जबरदस्त होने वाला है. कमिंग 1 आवर हम एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल हम दोनों के दोनों को चीज को हम इतना मार्च कर देंगे कि आपको बाद में आप सोचोगे हाँ भाई कैसे हम मतलब इतना ऐसे तरीके से तो हम पहले कभी सोचा ही नहीं है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, हाउ मेनी पीपल नो वॉरेन बफे? हाउ मेनी पीपल नो वॉरेन बफे? प्लीज टाइप ऑफ द कमेंट बॉक्स. हाँ, सब लोग ही जानते हैं कि वॉरेन बफे भाई कौन है. वॉरेन बफे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द प्लैनेट, कि हम सब लोग ही जानते हैं कि वॉरेन बफे कौन है. कि लेकिन सेकंड क्वेश्चन नहीं है कि वॉरेन बफे सर जी तो पता है हम कौन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन ही है आज वॉरेन बफे सर वॉरेन बफे बने क्यों है. तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है कि बोलता है कि नहीं 11-12 साल के एज से स्टार्ट किया था. बहुत सारे लोगों को मानना है कि पढ़ाई में अच्छा था. आप लोगों को कौन सा वाला लगता है कि नहीं वॉरेन बफे सर जो इतना पैसा कमा पाया है उसका जो मेन रीजन है, क्या लगता है आपको? तो कौन सा वो इफेक्टिव रीजन है? प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ लूंगा. ओके. सो बेसिकली क्या है, जो वॉरेन बफे सर है बेसिकली आज वॉरेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ओके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. तो बेसिकली सब लोगों ने क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड बहुत सारे बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग.
सो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मानना है, लेकिन मेरा मानना सर यही है कि वॉरेन बफे सर, आज वॉरेन बफे बन पाया है बिकॉज ही वाज ब्रॉर्न यूएस कंट्री, डेवलप कंट्री। अगर वॉरेन बफे सर जी अगर आज से 80 साल पहले, 70 साल पहले अगर इंडिया, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ होता तो आज वॉरेन बफे नहीं हो पाता। तो सर मेरा मानना ये बिकॉज ऑफ लक, उनका लक अच्छा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, यूएस कंट्री में उनका जन्म हुआ था। तो सर मेरा मानना है ये, अगर आज का जो कंट्री है हमारा इंडिया का कंट्री, तो हमें समझना होगा कि इंडिया में कितना अच्छा पोटेंशियल है, इंडिया में कितना ज्यादा दम है, कमिंग हमारा जो यूथ है, यूथ में कितना अच्छा दम है, इसको समझना होगा। अगर मैं आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे पहले समझना होगा कि कमिंग 5 to 10 ईयर कितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं सर कि मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। बट इजी नहीं होगा, हमें समझना होगा। आज टेक्निकल एनालिसिस, एक एनालिसिस होगा, पैरामीटर्स, बहुत सारे टेक्निक्स पैरामीटर्स है, और एक तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों के बीच ना डिबेट चलता है, एक आता है टेक्निकल एनालिसिस वाले, एक है फंडामेंटल एनालिसिस वाले। तो बेसिकली मैं आज आपको दोनों चीज ही मार्च करके दिखाने वाला हूं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं तो आपको प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, एंड मैं पहले ही थोड़ा बता देता हूं कि सर ने ऑलरेडी बोला कि मैं वेस्ट बंगाल से हूं, तो दैट्स व्हाई थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। तो आपको अगर किसी को भी कुछ बाद में कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में पूछ सकते हो, तो आई कैन, इफ आई कैन अंडरस्टैंड तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब लोग, आज का जो सेशन होने वाला है एकदम जबरदस्त, मेरे तरफ से पीएचडी कैपिटल का फुल टीम के तरफ से गारंटी मैं आपको देने वाला हूं। आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो मेरा दोस्त, और मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग ना आपका वीडियो ओपन कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों, आप सब लोग आपका वीडियो ओपन कर लीजिए, तो मैं ना सब लोगों को देख पाऊंगा एंड ज्यादा बात करने में मैं कंफर्टेबल रहूंगा अगर आप लोग वीडियो ओपन कर लेंगे तो। थैंक यू सो मच हिंदर सर एंड सब लोग वीडियो ओपन करने के लिए। एंड रिक्वेस्ट करूंगा सर राजेश जी को कि आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज मैं अभी छोटा से एक एक्टिविटी से स्टार्ट करूंगा। एक्टिविटीज क्या है, अब जब भी कोई सेशन में लेता हूं हमेशा ना एक दो गाना वगैरह, म्यूजिक वगैरह ये मेरा चलता है, मैं म्यूजिक से ही स्टार्ट करता हूं, बिकॉज आई बिलीव कि जब भी हम कोई भी सेशन लर्निंग पर्पस में ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रेनर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, अगर मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा ना, तो मैं भी दिल से पूरा 100% में डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ना मैं एक छोटा सा एक्टिविटी करना चाहूंगा, आप लोगों का हाथ लेना है एंड मेरे साथ मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगा। अभी आपको म्यूजिक के साथ थोड़ा हाथ को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? तो मैं आपको अभी शेयर करता हूं, आई थिंक यस, सो हो गया स्टार्ट। चीज मैं पहले बता देता हूँ, राजेश सर फॉलो करना आप। जिन्होंने भी आज हाथ ताली ऐसे नहीं किया ना, तो बाद में आप मेरे को बता देना कि प्रदीप इसने नहीं किया, और मैं गारंटी देता हूँ सर सबको, जिन्होंने आज कर लिया ना, लास्ट में इतना धमाका कुछ होने वाला है, हम लोग इतना ज्यादा धमाका करेंगे लास्ट में, इतना एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल, आप अपना पैसे को कैसे मल्टीपल कर सकते हो उसका सीक्रेट फॉर्मूला आज मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज एंजॉय द डे। एक मूवमेंट अगर चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा दोस्त, तो प्लीज एंजॉय।
ने बहुत आई थिंक एंजॉय किया ऑलरेडी। सो बेसिकली आज का जो सेशन होने वाला है, मैं एक छोटा सा स्टोरी के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग सब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग पैसा उनके लिए काम करते हैं। तो पैसे का जो साइकोलॉजी है, पैसे का साइकोलॉजी के साथ मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो पहले क्या होता है ना, एक अमीर आदमी रहता है, तो उनके पास ना 1 करोड़ फंड रहता है, उनके पास एक बैग में 1 करोड़ का एक फंड रहता है। तो वो बोलता है कि पापा पापा मेरे पास ना 1 करोड़ का फंड है, लेकिन मेरे पास ना सुख नहीं है, शांति नहीं है, मैं हमेशा ना परेशान रहता हूँ, हमेशा डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो पापा ने क्या बोला, पापा ने बोला कि चलो बेटा तू एक काम करना, और हमारा इंडिया में सर ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि जब भी हमारा कुछ परेशानी होता है लाइफ में कि तू एक साधु बाबा के पास चला जा। तो पापा ने क्या बोला, तू साधु बाबा के पास चला जा। तो बेटा क्या करता है, साधु बाबा के पास चले जाता है। साधु बाबा के पास जाने के बाद बोलता है कि साधु बाबा मेरे पास ना पैसा बहुत है, जिंदगी में पैसा बहुत है, देखो अभी मैंने 1 करोड़ ला के खड़ा कर दिया, देखो पैसा है, लेकिन मेरे ना सुख शांति नहीं है जिंदगी में कुछ भी। तो जो साधु वाला रहता है वो बोलता है अच्छा तेरे पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तू एक काम कर, तू ना मेरा एक क्या बोलते हैं अंगूठी अंगूठी पहन ले। जब तू अंगूठी पहन लेगा ना, 7 दिन बाद तेरे पास पैसा भी रहेगा और तेरे पास सुख शांति जो भी है सब कुछ चला आ जाएगा। तो 1 लाख दे के एक अंगूठी खरीदता है। अंगूठी खरीदने के बाद 7 दिन निकल जाता है। आफ्टर 7 डेज चले जाने के बाद क्या होता है, वहां पे फिर से शांति उनको नहीं मिलता है। और हमने ऐसे बहुत बार देखा, हम इंडिया में है बेसिकली, लाल बाबा भोले बाबा ऐसे बहुत सारे आजकल बाबा भी आ गया है मार्केट पे। तो वो क्या करता है, एक बाबा के पास जाने के बाद जैसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सेकंड बाबा के पास चला जाता है। तो सेकंड बाबा भी ऐसा बोलता है, ऐसे पा खड़ा करो, और पा खड़ा करने के बाद आप एक ऐसे मेडिटेशन करो। आप जब मेडिटेशन करोगे उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद वो जो लड़का था, लड़के ने वो भी फॉलो किया, उसके बाद फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे उसका एक रिश्तेदार उसको एक सलाह देता है कि तू चले जा, उस पर्वत में चले जा। उस पर्वत में चले जाने के बाद वहां पे तुझको एक बाबा मिलेगा, वो बहुत ही ऑनेस्टी बाबा है। वो तुझको ऐसा सलाह देगा ना, तेरे पास फंड भी रहेगा और तेरे पास शांति भी आ जाएगा, सुख शांति जो भी सेटिस्फेक्शन आप बोलो वो भी आ जाएगा। तो देन क्या होता है, वो जो लड़का था वो पहाड़ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उस बाबा को अप्रोच किया, जाके बताया कि बाबा बाबा मेरे पास ना पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास सुख शांति नहीं है। तो सडनली क्या होता है, बाबा बोलता है एक काम कर, तू अपना आंख बंद कर और पैसे को साइड में रख, पैसे को साइड में रख। पैसे को साइड में के रखने के बाद तू आंख बंद कर और 108 बार मैं एक मंत्र तुझे बोलता हूं, तू जापते जा। तो 108 बार वो मंत्र जापता है। तो आफ्टर 2 ईयर जैसे ही आंख खोलता है, क्या देखता है कि ना बाबा है और ना पैसा है, इधर बाबा भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। हमारे जिंदगी में क्या होता है, जैसे कुछ हमारा कुछ वैल्यूएबल चीज, कीमती चीज हमारे जिंदगी से चला जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग बहुत परेशानी हो जाता है हमारी जिंदगी में। तो बेचारा का पास तो इतना ज्यादा डिप्रेशन था, पैसा था, फिर भी उसके पास से पैसा भी चला गया। तो देखा ना बाबा है ना पैसा है, उसके बाद तो रोने लगा। तो आफ्टर क्राइंग कि जब जैसे ही नींद से उठा, वो तो हताश है बहुत, ऐसे ऐसे करके पहाड़ से नीचे जा रहा है। जैसे ही पहाड़ से नीचे जा रहा है उनको दिख गया हाँ बाबा है। तो फिर से बाबा के पास गया, बाबा बाबा आप कहाँ चला गए थे। तो देन बाबा बोल रहा है ये लो बेटा तेरा पैसा लो। तो वो जैसे ही वो बॉक्स ओपन करते देखा हाँ 1 करोड़ का फंड, 1 करोड़ ही है, कुछ भी हिला नहीं हुआ से, कुछ भी बाबा ने कुछ कटिंग सेटिंग नहीं किया। तो अभी बहुत खुश है वो। तो अभी बाबा बोल रहा है कि बेटा अब तुम बोलो तुम्हें कैसा फीलिंग आ रहा है। तो बोला हाँ बाबा बहुत मुझे अच्छा फीलिंग लग रहा है। तो बोला अभी तेरे पैसा थोड़ी देर बाद थोड़ा पहले तेरे पास भी था, अभी भी है, लेकिन पहले तेरे पास जब था तब तू डिप्रेस था, तब तू अच्छा नहीं लग रहा था, अभी क्यों तुझे अच्छा लग रहा है। तब वो जो लड़के ने बोला, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है सर, कि जिंदगी में पैसा हो और रिलेशनशिप हो और कोई भी चीज हो, कीमती चीज हो, जब आपके पास रहेगा ना तब आप बहुत हैप्पी रहोगे। और जिंदगी से जब वो आपका रिलेशनशिप और भी पैसा जब भी चला जाएगा ना, तब आपका उसका जो कीमत है वो आपको पता लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टोरी के साथ आपको आज एक नया चीज सिखाऊंगा
तो उसमें क्या है, हम लोग क्या है ना स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं, बेसिकली हम सारे लोग ट्रेडर है, हम सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट। हमें पहले व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है मैं आपको सबको बताऊंगा कि आप लोग प्लीज काइंडली मतलब जो भी काम है सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं अभी मेन टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम लोग जोड़ेंगे टेक्निकल को। एंड बेसिकली मैं हमेशा से एक चीज क्या है ना, मैं क्लास जब 10 में भी पढ़ता था, मेरा बहुत सारे फ्रेंड भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी सेशन में है, तो बहुत सारे फ्रेंड को भी पता है कि मैं ना बहुत मतलब पढ़ाई में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता था बेसिकली, लेकिन मैंने 10th पास किया, उसके बाद 12th, तो बेसिकली मैं मैथमेटिक्स पे इस सब पे बहुत ही कमजोर था। लेकिन मैं हमेशा से ढूंढता था कि स्टॉक मार्केट पे कैसे मैं सक्सेसफुल हो सकूं, स्टॉक मार्केट पे कैसे मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी, कैसे मैं ऐसा मॉडल में लॉन्च कर सकूं जिससे इन्वेस्टर को बहुत हेल्प हो सके। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर रिसर्च मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया दोस्त, मार्केट में दो तरह का लोग हैं, एक है फंडामेंटल एनालिस्ट वाले, एक है टेक्निकल एनालिस्ट वाले। व्हेन यू केम इन स्टॉक मार्केट आपको तो एक क्लियर होना चाहिए कि आप एक टेक्निकल वालों को फॉलो करोगे ना कि आप एक फंडामेंटल वालों को फॉलो करोगे। तो बेसिकली क्या है ना, फंडामेंटल आपने अपनी जगह सही है, टेक्निकल भी आपने अपनी जगह सही है, सब लोग ही अपने अपनी जगह सही है, लेकिन जब मैं फंडामेंटल का बात बोलता हूं तभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। आप फंडामेंटल में क्या है सर, आप एक कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे पर ये ऐसे मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग थॉट्स है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है। मेरा मानना जस्ट मैं आज शेयर कर रहा हूँ। फंडामेंटल में क्या है ना, एक फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, आप किसी को फंडामेंटल एनालिस्ट को फॉलो करोगे वो बिजनेस बता देगा, ये बता देगा, वो बताएगा, सडनली बता देगा कोई 50 रुपये का स्टॉक बोल देगा कि 100 रुपया टारगेट है, 100 रुपीज टारगेट है। बट आफ्टर गोइंग 100 एंड 200 वट एवर जो भी है, उसके बाद परफेक्ट एग्जिट आपको कहाँ करना है। और मैं सर हमेशा यही मानता हूं कि आपको एंट्री के टाइम पैसा नहीं बनाते हो, आप परफेक्ट एग्जिट के टाइम ही पैसा बनाते हो। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक पे जब इन्वेस्ट करते हो आपको परफेक्ट एंट्री, आप कुछ भी ले लो, बुल मार्केट पे तो सब चलेगा, लेकिन आपको एग्जिट पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए आपको बेसिकली कुछ टर्म समझना होगा, और मैं फंडामेंटल का कुछ चीज आप लोगों से शेयर अभी करूंगा। फंडामेंटल में मैं एक चीज हमेशा से देखता हूं, जो ये 7 चीज है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो होगा सेल्स ग्रोथ, एक कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है उसके हिसाब से मैं जांच करता हूं हमेशा। तो सेल्स ग्रोथ क्या होता है, सेल्स क्या होता है, बेसिकली कंपनी कुछ भी बनाए, कंपनी ऑटो सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो, एफएमसीजी में हो, सीमेंट सेक्टर में हो, कंपनी क्या सेल कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का सेल्स क्या है, उससे मुझे पता लग जाएगा कि कंपनी का कैसे क्या बिक रहा है प्रोडक्ट। तो कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेल्स मुझे देखना होगा। देखिए मैं आज बता रहा हूँ फंडामेंटल, लेकिन मैं फंडामेंटल के ज्यादा डेप्थ में कभी जाता ही नहीं हूँ। और फंडामेंटल में क्या है, मैं हमेशा से एक 7-8 पॉइंट ही मैं फॉलो करता हूँ, मैं फंडामेंटल ज्यादा फॉलो नहीं करता। फंडामेंटल में क्या क्या कुछ चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं टेक्निकल आपको बताऊंगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है सर मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है, सेल्स में आपको 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखना है, कोई भी कंपनी एबीसीडी कोई भी कंपनी आप पकड़ लो, आपको फंडामेंटल में क्या है 5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। उसके बाद नीट प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, कंपनी का कितना क्या प्रॉफिट ग्रोथ होगा, कितना क्या कुछ होगा आप देख सकोगे क्या। मेरा मानना है ये 10 से 12% अगर कंपनी लास्ट 5 साल में, कोई भी कंपनी एबीसीडी कोई भी कंपनी हो, अगर अच्छा ये दोनों जो चीज है ना, सेल्स ग्रोथ एंड नीट प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों चीजों से हमें कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड पता चलेगा। वन मोर टाइम कम ऑन गाइस, क्या पता लगेगा, 1 नंबर पॉइंट एंड 2 नंबर पॉइंट जो भी है यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर एंड नीट प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर, ये दोनों चीजों से हमारा एक स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड पता लगता है। इस ट्रेंड से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है। सेकेंड, मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैं हमेशा देखता हूं, बिकॉज क्या है ना, आज अनिल अंबानी, आज आप देखोगे तो प्रीवियस में अनिल अंबानी आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज उनका इतना ज्यादा लोन था, इतना ज्यादा डेब्ट था,
उसके बाद उनका मतलब बिजनेस भी क्रैश हो गया, एकदम जिंदगी भी खराब हो गया। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर था, उनका नाम क्या है, जी 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 ग्रुप भी ऐसे ही खत्म हुआ, जी बिजनेस का जो ऐसे है ना, वो जी ग्रुप का अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो क्या है ना, अभी यही है कि डेप सब लोग मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे डेप के कारण खत्म हो गया। सो व्हेन यू इन्वेस्ट एनी स्टॉक, आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि मैं कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। भाई अगर 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 200 करोड़ का लोन ले रहा है, 300 करोड़ का लोन ले रहा है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि नहीं मैं कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। उसके बाद आता है पी रेशियो एंड इंडस्ट्री पी। पी रेशियो मतलब प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, एंड इंडस्ट्री पी मतलब इंडस्ट्री का जो कंपेयर है, जो पर्टिकुलर स्टॉक है, स्टॉक के साथ इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली अब सब लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, मैं एक स्टॉक को कोई भी स्टॉक को एक सिलेक्ट करके मैं पर्टिकुलर आपको कहाँ से सब कुछ देखना है मैं वो भी बता दूंगा। उसके बाद पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो भी मिनिमम अगर 5 का नीचे होगा, 5 के ऐसे ही अगर होगा तो मैं सोचूंगा कि ये अच्छा ही होगा। उसके बाद एम कैप टू सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स, ये भी मुझे देखना चाहिए। एंड जो सबसे बड़ा पॉइंट, अगर सब पॉइंट एक साथ मार्ज है, उसके साथ मुझे मेरा जो 7 पॉइंट है टेक्निकली बिग ब्रेकआउट, मुझे टेक्निकली बिग ब्रेकआउट चाहिए, तभी मैं कोई भी स्टॉक पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको एक वेबसाइट में चला जाऊंगा। तो ये जो वेबसाइट है आप लोग देख सकते हो, screener.in है। अभी मैं आ गया screener.in में। तो screener.in में मुझे क्या क्या देखना है, अभी हमने बात किया क्या देखना है हमें, पहले देखना है कंपनी का फिनेंशियल ट्रेंड। फिनेंशियल ट्रेंड कैसे पता लगेगा, कंपनी का क्या सेल्स है, क्या टर्नओवर है। ये जो वेबसाइट है ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं 2-3 चीज कोई भी पेड वगैरह की बात नहीं करूंगा। आप सब लोग नया हो या फिर ओल्ड हो, आपको एक फंडामेंटल, कोई भी कंपनी जब आप इन्वेस्ट करते हो, कोई भी कंपनी जब आप बात करते हो, तब आपको मोटा मोटा क्या देखना चाहिए बेसिक, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या ना, फंडामेंटल पे बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल के बहुत सारे रेशियोज है, बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत सारे मतलब तरह तरह का चीज है। लेकिन मैं बेसिकली कोई भी कंपनी चूज करने से पहले ये 7 चीज जो मैंने 7 चीज आपको दिखाया, ये 7 चीज अगर सही होगा तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैंने एक कंपनी अभी सिलेक्ट किया, निप्पॉन इंडिया इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का पहले क्या देखना है, पहले तो मुझे मार्केट कैप देखना है कि 840 करोड़ है। तो उससे उसके उसके बाद नीचे क्या देखना है, पहले मैं चला जाऊंगा सेल्स पे। क्या मैंने क्या बोला सर, लास्ट 5 साल का सेल्स देखना है, तो आ जाओ नीचे, सेल्स देख लो, सेल्स देख लो आप, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स, चलो सेल्स देख लो। यहाँ पे आपको सेल्स दिख जाएगा 2015 से अगर मैं बात करूंगा, पहले था 324 करोड़, उसके बाद 336 करोड़, उसके बाद 351 करोड़, उसके बाद 452 करोड़, उसके बाद 525 करोड़, और लास्ट ईयर में 480 करोड़। हम सबको पता है कि कोरोना के बाद थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा सेल्स कम हुआ था। तो ऑलरेडी क्या देखा हमने, सेल्स बराबर है एकदम। उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद देखना है हमें प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या है ना, हमें एकदम नीट प्रॉफिट चेक करना है, कंपनी का बैलेंस शीट पे जाके एकदम हमें नीट प्रॉफिट चेक करना है कि हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेटेड मिल जाएगा। ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, हाँ लास्ट 5 सालों पे ऑलरेडी 9% है, और मैंने बोला 9 to 11% मीन्स वेरी गुड। आपको मैं फिर से एक बार वो स्लाइड दिखाऊंगा, 9 to 10%, मोटा मोटा 9%, 10%, 12% इज वेरी गुड। उसके बाद कंपाउंड सेल्स 5 साल का 7%, वो भी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे screener.in पे आके आपको एक अकाउंट ओपन करना है। जब भी आप अकाउंट ओपन कर लोगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टॉक का पी। पी क्या होता है, पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जब आप कोई भी स्टॉक आप एनालिसिस करोगे, इससे क्या पता चलता है, कंपनी का वैल्यूएशन पता चलता है। मैं फिर से बताता हूं सर, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं ना, मैं जब नया नया मार्केट पे आया था, या फिर मार्केट में मैं जब भी कोई एनालिसिस करता हूं, कि मुझे, मैं हमेशा रिटेलर की तरह सोचता हूं कि रिटेलर को इतना ज्यादा डेप ना पता नहीं होता है, क्या पी, क्या पीबी, क्या प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, क्या ओटीएम, क्या सेल्स, इतना ज्यादा मतलब बनता ही नहीं है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि एकदम इजी, एकदम इजी फंडामेंटल। एक चीज जो अभी 1 घंटा हम चलने वाला है हमारा सेशन, 1 घंटे में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर, अगर आपने ध्यान से सुना, उसके बाद जिंदगी में आप कभी भी नहीं पूछोगे कि भाई मैं फंडामेंटल में मुझे क्या जानना है।
बस बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग बहुत कुछ देखता है, लेकिन अगर आप थोड़ा, आपको नॉलेज, देखो कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है, आपको जस्ट नॉलेज चाहिए, उसके बाद तो कंपनी का ही काम है ना बिजनेस करना। तो आपको जस्ट मोटा मोटा मार्केट कैप क्या है, सेल्स क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, 5 साल का बैकग्राउंड क्या है, बस ये सब कुछ देखना है। तो जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है कि एक कंपनी 100 रुपये का होगा या फिर 200 रुपये का होगा, वो वैल्यूएशन आता है कब, वो वैल्यूएशन आता है इससे निकलता है कि पी में, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, पीबी में, प्राइस टू बुक वैल्यू में। तो इससे क्या है, इससे ना क्या है आपको पता लगेगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, आपको यहाँ पे दो चीज देखना है, एक है कंपनी का स्टॉक प्राइस का पी 21 एंड कंपनी का इंडस्ट्री पी 32 है। मतलब एक सेक्टर है, एक सेक्टर का जो पी है 32 चल रहा है, लेकिन स्टॉक का पी चल रहा है 21, मतलब सेक्टर सेक्टर से अभी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन में ओवरबॉट नहीं है, स्टॉक वैल्यूएशन में ठीक है। एक पॉइंट हो गया। सेकंड, मुझे हमेशा अभी पी में भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ये भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी बहुत कुछ आ सकता है, नहीं नहीं पी इतना होगा तो लो है, पी नहीं नहीं पी 40 होगा 60 होगा तो ये होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कुछ मानना है। लेकिन मेरा मानना ही है, आपको जब भी आप कोई भी स्टॉक का पी आप देखोगे, आपको हमेशा इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर में देखना है। आप जब भी कोई सीमेंट सेक्टर का भी आप स्टॉक एनालिसिस करेंगे, आपको सीमेंट सेक्टर का पर्टिकुलर स्टॉक के साथ इंडस्ट्री, कभी कभी होता है ना इंडस्ट्री पी हाई रहता है, तो आप ना स्टॉक का पी देख के आपको समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई मैं ही बोलता हूं हमेशा से, आपको इंडस्ट्री वर्सेस स्टॉक एनालिसिस करना होगा। उसके बाद क्या है ना, बुक वैल्यू आपकी अभी अभी क्या है, कंपनी का बुक वैल्यू 199, अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है कितने पे, अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है 371 पे। कंपनी का बुक वैल्यू क्या होता है, एक कंपनी जो है फंडामेंटल पे क्या होता है ना, अगर मैं 1999 का बात बताऊंगा, तो हमेशा से कंपनी का जो फेस वैल्यू रहता था ना 100 रुपया 200 रुपया रहता था, लेकिन आज का जमाने में क्या है, कंपनी का फेस वैल्यू 2 टका 5 टका 1 टका 10 टका, बस यही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब यही है कंपनी का ओरिजिनल प्राइस, जो कंपनी का प्रोमोटर लोगों ने बाय करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कौन सा स्टॉक, यहाँ पे देखो सर एक चीज सब लोगों मतलब अच्छे से यहाँ पे देख लो, 199 मतलब 200 में मोटा मोटा पकड़ के लेता हूँ, 200 है और कंपनी का प्राइस चल रहा है अभी 371, मैं यहाँ पे मोर देन 5 टाइम्स मैं मैक्सिमम देखूंगा। मतलब अभी बुक वैल्यू चल रहा है 200 रुपया, अगर स्टॉक का भाव 1000 रुपया तक भी आ जाएगा, तो मेरा मानना ही होगा स्टॉक ओवरबॉट नहीं है। अभी जैसे कि डीमार्ट, डीमार्ट का भाव 500 रुपया भी था, अभी 2000 भी था, 3000 भी है। तो यही है ना, आपको बुक वैल्यू देखना होगा, उसके बाद फाइनेंशियल और भी ज्यादा जो पैरामीटर्स है उसके साथ कंपेयर करके आपको देखना होगा एंड आपको समझना होगा कि आप जो भी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके लिए परफेक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पॉइंट, आप इससे अगर डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ये प्रॉपर मतलब फिर से कहना फाइनेंशियल मैटर आ जाएगा, मैं आपको फाइनेंशियल ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको क्या क्या चीज फॉलो करना है एकदम इजी, बिकॉज आज का सेमिनार जो हो रहा है एकदम इजी तरीके से बताना है, हम इजी तरीके से बताएंगे। तो कहना प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेल्स, यहाँ पे ऐसे सेल्स सिलेक्ट करोगे, लास्ट 5 साल का सेल्स जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। आप यहाँ पे नीट नीट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, हाँ वो भी आपको आ जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0.05 के नीचे हो तो हमेशा अच्छा है। और आपको ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा से क्या देखना है, जब भी आप कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज आपको देखना है। बिकॉज कोई कंपनी अगर 100 रुपया अर्निंग करता है, उसके अगेंस्ट पे अगर 200 रुपया 300 रुपया लोन लेता है, तो मेरा मानना होगा वो कंपनी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये फंडा ना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है ना, बैंकिंग सेक्टर में एंड एनबीएफसी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में एंड एनबीएफसी सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो दैट्स वाई वहां पे उनका काम ही है डेब्ट ज्यादा दिखाना, ज्यादा होना। तो ये जो फंडा है वो बैंकिंग सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी आप अदर स्टॉक में इसका फंडा को आप एप्लीकेबल कर सकते हो। मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.1 मतलब कुछ है ही नहीं, डेब्ट एकदम लो डेब्ट। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं इसका बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज देखो, एक चीज देखो सर। अच्छा ब्रिटानिया का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, ब्रिटानिया मारुति। मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, आप एक चीज देख लो कि मैं फंडामेंटल पे ज्यादा अभी फोकस क्यों नहीं दे रहा हूं।
मैं टाटा एलेक्सी का एक बात दिखाता हूँ। देखो सर, टाटा एलेक्सी का चार्ट में क्या है, टाटा एलेक्सी का चार्ट में क्या है, आप सब लोग ध्यान से देखो। अभी गेम चेंजिंग वर्ड मैं आज कहने वाला हूं। आप, मैं लिख के दे सकता हूं, आप बहुत सारे लोग मार्केट पे हो, लेकिन अभी जो जिस तरीके से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपने शायद बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया। देखो एक चीज, टाटा एलेक्सी 2000 से लिस्टेड है, लेकिन टाटा एलेक्सी में ब्रेकआउट कब आया? एक चीज देखो, एकदम जबरदस्त ब्रेकआउट कब आया? 2014 के बाद। ऑलमोस्ट क्या है, 15 साल स्टॉक चला नहीं है। 15 साल स्टॉक कोई भी परफॉर्म नहीं है, बस रेंज बाउंड ट्रेड किया। स्टॉक चला कब? स्टॉक चला तभी जब उसका जो बड़ा रेंज बाउंड है, बड़ा एक रेंज था ऑलमोस्ट 150 के जोन से, 150 के जोन जैसे ही क्रॉस किया 150 से सीधा सीधा स्टॉक क्या आ गया, लास्ट 5 सालों में 200 से 4000 आ गया। कैसे हुआ? तो एक चीज आप बताओ, टाटा एलेक्सी का क्या पहले कंपनी नहीं था सर? टाटा एलेक्सी पहले अच्छा नहीं था, बाद में क्या हुआ, टाटा एलेक्सी अच्छा हो गया। चलो मान लो टाटा एलेक्सी को मैंने छोड़ दिया, आप मारुति को देखो। मारुति तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है ना। अगर मैं फंडामेंटल देखूंगा, फंडामेंटल में फिर से फंडामेंटल में आता हूं, मैं एक दो एग्जांपल पे बात कर लेता हूँ। मारुति का सब लोग जानते हैं मारुति कितना बड़ा ब्रांड है ऑटो सेक्टर में। तो मारुति का क्या हुआ, मारुति चलता नहीं था। अभी इधर में आके क्या हुआ भाई, 2014 के बाद, 2014 के बाद जैसे ही 1400 रुपया 1500 रुपया के इधर में एक ब्रेकआउट आया, सीधा सीधा यहाँ से मारुति आ गया 10,000 में। 2014 के बाद मारुति ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आ गया 10,000 में। आप एक चीज बताओ, मैं इंडिया का बात ना अभी छोड़ देता हूं, चलो इंडिया का बात अभी मैं छोड़ देता हूं। वर्ल्ड का आज सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन कौन है, सबसे अमीर आदमी कौन है आज वर्ल्ड में? वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन कौन है? इलॉन मस्क, राइट? इलॉन मस्क की कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला। तो मैं क्या करता हूं, चलो टेस्ला का शेयर देख के आता हूं। टेस्ला आपको दिख जाएगा कि अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग जो अभी मतलब सोचते कि नहीं 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 फंडामेंटल साहब है, फंडामेंटल साहब है। फंडामेंटल है भाई, फंडामेंटल है, टेक्निकल भी है, दोनों चीज ही है, लेकिन हमें समझना होगा। अभी देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। इलॉन मस्क, मेरे ख्याल से मैंने जितना स्टडी किया, आई एम ग्रेट फैन ऑफ इलॉन मस्क। लास्ट मैं बहुत सालों से, 5-7 सालों से उनको बहुत नियरली मैं मतलब ट्रैक करता हूँ। उनका एक एक ट्वीट में एनालिसिस करता हूँ, सब कुछ मैं ट्रैक करता हूँ। तो लास्ट 5 सालों से 7 सालों से क्या था, इलॉन मस्क ना टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में था वर्ल्ड में, और ओवर वर्ल्ड में। तो उनको तो सब लोग जानते थे, उनका कंपनी को सब लोग जानते थे, लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं करता था। सर बात क्या है सर, प्रदीप सर बता दो, आप स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म करता था? अभी कंपनी लिस्टेड हुआ था 2011 में, 2011 से 2019 आ गया, कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। 10-10 साल कंपनी परफॉर्म नहीं किया सर। उसके बाद 2019 के बाद क्या हुआ, एक बड़ा ब्रेकआउट आया चार्ट में, उसके बाद कंपनी एकदम मतलब धमाका हो गया। तो पहले क्या था, पहले क्या फंडामेंटल सही नहीं था? ऑब्वियसली सर मैं फंडामेंटल को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, करता भी हूं, करूंगा भी, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप कब तक इन्वेस्ट करोगे, कब तक नहीं इन्वेस्ट करोगे। एक चीज बताओ, देखो मैं एक एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, आप लोग तो सब लोग मार्केट पे काम करते हो, लेकिन मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको पता लगेगा कि भाई मार्केट कैसे काम करता है। वो जो जमाना है ना, अभी बहुत सारे लोग मार्केट में है, मेरा एज सर बहुत ही कम है, लेकिन मैंने ना इस एज में मैंने बहुत सारे एक जनरेशन मैंने देख लिया, बहुत सारे एडवाइजर मार्केट पे आता है चला जाता है, बहुत सारे ट्रेडर मार्केट पे आता है चला जाता है। तो आपको एक चीज समझना होगा, आप मार्केट पे कितना दिन रहोगे और मार्केट को आप कैसे तरीके से देखते हो। एंड बिलीव मी, 95% ऑफ द पीपल दे आर लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। 95% लोग हमेशा लॉस ही करते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूं सर, आपको पता लग जाएगा आपको एक स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है। सिर्फ फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होने से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसके साथ टेक्निकल रीजन भी होना चाहिए। एक चीज बता दो, मैं कमेंट बॉक्स से अभी मैं कमेंट लूंगा, आप एक चीज बता दो मुझे कि शाहरुख खान, हम सब लोग जानते हैं शाहरुख खान जी को, एंड ऋतिक रोशन को भी हम सब लोग जानते हैं। शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन दोनों में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? लुकिंग एंड बॉडी वगैरह सब कुछ, दोनों में ज्यादा हैंडसम कौन है? प्लीज टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स। शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन दोनों में सबसे ज्यादा
हैंडसम कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? प्लीज सब लोग लिखिए, आपको मतलब जो भी पता है। शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन। ऋतिक, ओके ऋतिक, ओके। शायद देवनाथ ऋतिक, ओके। रजवीर सर ऋतिक, ओके। ऋतिक, राजेश सर ऋतिक, ओके। पार्टिसिपेंट कीजिए ना सब लोग, पार्टिसिपेंट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेंट। ऋतिक, ओके, यस। तो हम सबको पता है कि शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन में हैंडसम है ऋतिक। अच्छा एक बात, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन में सबसे अच्छा बढ़िया डांस कौन करता है सर? सबसे बढ़िया डांस कौन करता है? ओके, फिर भी ऋतिक, ओके। तो शाहरुख खान एंड ऋतिक सर से दोनों में ही ऋतिक सर ही अच्छा है। वन मोर थिंग, शाहरुख खान एंड ऋतिक सर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? पैसा कौन कमाता है? आपको क्या लगता है? यस, एस आर के। अल्टीमेट मैं बताना क्या चाहता हूं सर, बताना मैं यही चाहता हूं, आप दिखने में सुंदर हो, आपका बॉडी अच्छा है, दैट्स नॉट मीन आप पैसे कमा सकते हो अच्छा, ठीक है? आपके पास मार्केटिंग नॉलेज, मार्केट का नॉलेज सब कुछ होना चाहिए। शाहरुख खान क्या है ना, आप उनको भुवनेश्वर बोलेंगे कि भुवनेश्वर आ जाओ, कोलकाता बोलेंगे कोलकाता आ जाओ, आ जाएगा, 10 लाख दे दोगे तो आ जाएगा। लेकिन ऋतिक रोशन भाई नहीं आएगा। तो टाइप्स ऑफ ब्रांड, ऋतिक रोशन बॉडी अच्छा हो सकता है, सब लोग अपने अपने फील्ड पे अच्छा है, लेकिन पैसा कौन कमाता है अच्छा? पैसे कमाता है कौन? पैसे कमाता है ज्यादा ऋतिक रोशन। अच्छा और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल भी सीखना होगा। अगर आप फंडामेंटल पे अच्छा हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, दिस इज वेरी गुड ना। अगर आपको मैक्सिमम, मैं यही बात हमेशा से कहता हूँ कि देखो हम लोग रिटेलर इन्वेस्टर है भाई, तो हम सब लोगों को पास क्या है ना, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। अभी मैं अगर आपको कुछ फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज थोड़ा अगर डेप्थ में चला जाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आएगा कि प्रदीप अभी बोल क्या रहा है। अभी बोला था सिंपल सिंपल कर देगा, अभी फिर से वो फाइनेंशियल मैटर पे घुसना नहीं चाहता। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ रिटेलर इन्वेस्टर, तो दैट्स वाई मैंने ये सारा एग्जांपल अभी यूज कर रहा हूँ। हमें क्या है ना, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जब मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, और एक एग्जांपल मैं हमेशा से यूज करता हूँ। अभी एक चीज देखो सर, अच्छा बहुत सारे लोगों तो ये पता है ना कि पीकॉक एंड मंकी, ये दोनों में सबसे अच्छा पैसे कमा के कौन देगा आपको? मतलब मयूर पैसा कमा के देगा या फिर बंदर? आपको क्या लगता है दोनों में से कौन? आप अगर बंदर को बोलोगे नाच, वो नाचेगा, झुमरा नाच, वो भी नाचेगा, अबे गाना गा तो भी गाएगा। आप अगर पीकॉक को बोलोगे कि तू नाच, बोलेगा नहीं मौसम अच्छा नहीं है तो नहीं नाचूंगा, नहीं नहीं अभी अभी ये अच्छा नहीं तो नहीं नाचूंगा, नहीं नहीं नाचूंगी। तो बात क्या है ना, आपको भी समझना होगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लाइफ में। जब तक वो फ्लेक्सिबिलिटी का मैटर ना सामने नहीं आएगा ना, तब आप सोचोगे कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं, अभी कुछ होगा ही नहीं। यस, दिस इज द राइट आंसर, मंकी आपको पैसा कमा के देगा। तो आपको भी ना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा ना, तो पैसा आप कमा ही नहीं सकते हो। तो चलिए मैं आपको जो बता रहा था कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल में क्या है देखो सर, फंडामेंटल आपको अभी कौन सा का शेयर का मैं चार्ट अभी दिखाऊंगा। चलो मैं पहले चार्ट ही जो दिखा रहा था उसमें ही हम जाएंगे, उसके बाद हम कुछ अदर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा रहा था क्या, टेस्ला के बारे में दिखाया था। टेस्ला भी यही है, टेस्ला की क्या, ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ टेस्ला भागा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चलो आप आ जाओ, आप ब्रिटानिया पे, आप ब्रिटानिया का स्टॉक में आ जाओ, ठीक है? चलो ब्रिटानिया का स्टॉक मैं दिखाता हूं। देखो सर ब्रिटानिया का स्टॉक में भी सेम क्या है, स्टॉक चला नहीं था कब, स्टॉक कब से चला, आपको ये चीज पहले ध्यान से देखना होगा कि स्टॉक 2000 से 2000 साल से चला ही नहीं है। 2011-12 के बाद स्टॉक एकदम अचानक से एक मूवमेंट आया और चला। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू एवरीवन यही है कि 2012 के बाद ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक मल्टीबैगर हो गया, लेकिन 12 साल चलता ही नहीं था स्टॉक। अभी ब्रिटानिया का बात छोड़ ही दो, चलो आइसर मोटर का स्टॉक दिखाता हूं। चलो आइसर मोटर पे भी हम एक बार देख के आते। आइसर मोटर पे भी क्या हुआ देखो, एक चीज देखो सर, आइसर मोटर पे एक चीज आपको इधर भी दिख जाएगा कि आइसर मोटर का स्टॉक पे क्या हुआ था। आइसर मोटर का स्टॉक पे भी सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हुआ,
स्टॉक चलता नहीं था 2005 से स्टॉक चला ही नहीं था। 2005 से क्या है, स्टॉक चला ही नहीं था। उसके बाद सडनली जब भी ब्रेकआउट आया स्टॉक में, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक चला। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि ब्रिटानिया, टाटा, बिरला, अंबानी, टेस्ला, अभी दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन कौन है? दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन कौन है? अमेजोन का मालिक। चलो जेफ बेजोस, अमेजोन देख, अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, चलो अमेजोन देख के आते हैं हम। अमेजोन चलो देख के आते हैं। अमेजोन, अभी ये अमेजोन का परफेक्ट स्टॉक नहीं है। ओके यस, दिस इज द परफेक्ट स्टॉक। ओके अमेजोन देखो सर, अमेजोन भी सेम थिंग। अमेजोन फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेट किया लेकिन बाद में चला, लेकिन सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, तो यही है। एक मिनट, अमेजोन कंपनी, ओके सो यही है। अमेजोन में भी सेम थिंग, क्या है, स्टॉक 10 सालों तक नहीं चला, 10 सालों तक नहीं चला स्टॉक। तो 10 सालों तक चलने के बाद स्टॉक में क्या आया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद स्टॉक में चार्ट में ब्रेकआउट आया और फिर से स्टॉक चला। तो मैं सर यही बोलना चाहता हूं कि कब कब एक स्टॉक चल रहा है। चलो मैं, और इंडिया में ऐसा कोई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरे यार बहुत अच्छा ब्रांड छोड़ भूल गया था मैंने। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मुझे आज भी याद है 2011 में, 2010 में, उससे पहले ना मैं छोटा था बहुत, लेकिन मेरा जो सीनियर था, मेरा घर में भी मेरा अंकल थे, जो भी थे, सब लोग बोलते थे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरे यार ट्रेड ही नहीं होता था यहाँ पे। देखो कितना छोटा छोटा कैंडल है, ट्रेड ही नहीं होता था इधर पे, ट्रेड ही नहीं होता था यहाँ पे, ट्रेड ही नहीं होता था, छोटा छोटा कैंडल है, बस चलता नहीं है स्टॉक। सब लोग बोलता था अभी ये भी नहीं चलेगा, नहीं जमेगा, स्टॉक क्रैश हो जाएगा, स्टॉक नहीं चलेगा। तो उसके बाद देखो क्या है, जब सब लोग बोलता है ना कि स्टॉक नहीं चलेगा, सब लोगों का व्यू एक मतलब सेम हो जाता है, नहीं नहीं अब तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे ही स्टॉक एक ब्रेकआउट देगा ना, स्टॉक रुकेगा नहीं, स्टॉक रुकेगा ही नहीं, बहुत जबरदस्त चलेगा स्टॉक। तो अभी देखो सर मार्केट पे कौन सा स्टॉक है, कौन सा कौन सा स्टॉक है जो बहुत मीम बन रहा है मार्केट पे, अभी चलता नहीं है, बहुत सारे मीम बनता है। अभी कोरोना क्रैश हो गया फिर भी स्टॉक क्रैश नहीं हुआ, मार्केट ऊपर है फिर भी नहीं आया। तो यही है आईटीसी, ये सब लोगों को पता है। तो मेरा मानना सर यही है, आईटीसी पे भी एक दिन चलेगा, लेकिन आईटीसी हमें अभी नहीं पकड़ना है। आईटीसी का भी फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट में हमें दिखना है, उसके बाद आईटीसी में इन्वेस्ट करना है। जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना, देखो ये क्या है ना, एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट पे काम करने का, एक फंडामेंटल, एक आज मैं ना आपको एक नया अप्रोच बता रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, एक नया अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको दोनों ही करना है। फंडामेंटल पे आपको क्या 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 हमेशा फॉलो करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर से अगर किसी ने नोट नहीं किया तो फिर से आप नोट कर लो कि सेल्स ग्रोथ देख लो, 5 साल का 10%, 9% रहेगा तो बराबर है, एकदम कंपनी है, ठीक है। आप नीट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कंपनी का जो है नीट प्रॉफिट देख लो 10%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 होना चाहिए। कंपनी का जो पी रेशियो के साथ वर्सेस इंडस्ट्री पीओ हमें देखना है, कंपनी का पीबी रेशियो के साथ हमें भी कंपनी का इंडस्ट्री पीबी रेशियो देखना है, थोड़ा मार्केट एम कैप टू सेल्स देखना है, बस उसके साथ टेक्निकल ब्रेकआउट देखना है। बस आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको आप फॉलो करो, इसको आप फॉलो करो, उसके बाद टेक्निकल पे आ जाओ, उसके बाद टेक्निकल चार्ट देखो, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखो। एंड फिर से मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो एंड आप टेक्निकल रिसर्च करते हो, आपको वहां पे भी बहुत मिसकंसेप्ट मिलेगा। फंडामेंटल पे आपको कुछ देखना ही, मतलब देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है, आप देख रहे हो, दिस इज वेरी गुड। और फंडामेंटल आपको एनालिसिस करने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट फॉलो करना है, मैं वो भी बता देता हूँ सर आपको। आपको कुछ भी पैसा वेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इजीली आप सीधा सीधा चले आओ। कौन सा वेबसाइट, इस वेबसाइट में आ जाओ आप, सीधा सीधा, क्या है वेबसाइट का नाम, tickertape.in। आप इसमें आ जाओ, इसमें आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ देखो एफडी का रिटर्न से अच्छा है, ओवरऑल व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज वगैरह है तो भी आपको मिल जाएगा कंपनी का। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, एक कंपनी में म्यूचुअल फंड होल्डिंग कम ही इंक्रीज करता है जब म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर रहता है, सब लोग प्रोफेशनल रहते हैं, उनको लगता है कि ना मुझे अच्छा लगे, मैं अच्छा कंपनी चल सकता है। तो आपको ना ये जो tickertape.in है, इससे आपको न्यूज पता लग जाएगा कि नहीं कंपनी का
क्या ट्रेंड है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आपको मोटा मोटा देखना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद क्या है, आप चले आओ स्किनर.इन पे आपको मैं नीचे और लाके यहाँ से आपको चार्ट वगैरह कुछ दिख सकता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी क्या डिविडेंड दे रहा है, सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। कंपनी का सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपको कुछ भी चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये जो वेबसाइट है यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। एक चीज सर, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, एक चीज देखो, मार्केट जब भी नीचे आता है, कोई भी फंड मैनेजर, आप मुझे बताओ क्या रिटर्न दे पाएगा? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखो मान लो मैंने आपको अभी सीएनएक्स मिड कैप का मैंने चार्ट निकाला, सीएनएस मिड कैप, ठीक है, निफ्टी सीएनएस मिड कैप, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज है इसके अंदर में लिस्टेड है। तो सीएनएक्स मिड कैप जो कंपनीज है, इसमें आप एक बात देखो, 2018 से 2020 के अंदर, 2018 से 2020 के अंदर क्या था, नीचे था। तो ये जो डाउन ट्रेंड था, आप बताओ कौन सा पीएमएस वाले, कौन से होल्डिंग वाले, कौन से म्यूचुअल फंड वालों ने रिटर्न दिया है? कोई भी क्या रिटर्न दे पाया है? नहीं दे पाया है। तो आपको समझना होगा, ट्रेंड आपको समझना होगा। आप सिर्फ फंडामेंटल देखोगे तो काम नहीं बनेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ना बता दिया फंडामेंटल इंडिया का 10 स्टॉक जो भी मैंने बताया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा एलेक्सी, आप मारुति को देख लो, आप बाटा को देख लो, आप नेस्ले को देख लो, आप टेस्ला को देख लो, आप अमेज़न के देख लो। सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड का सेम रेशियो है सर, सेम फॉर्मूला, सेम रेशियो। इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता भाई, सब लोग जानता है। जिनका अभी बिल गेट्स को लेके भी एक ट्रेंड क्या बोलता है ना, बिल गेट्स को लेके, बिल गेट्स के पास अगर मान लो 50 लाख है, 50 लाख अगर नीचे गिर गया ना, तो 50 लाख उनका उठाने में जितना पैसा, मतलब जितना टाइम लग जाएगा ना, उतना पैसा, डबल पैसा उनका इनकम हो सकता है 2 सेकंड पे। तो पैसा कभी झुक जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, तो पैसा कभी तुलता नहीं है। तो आपको ये चीज समझना होगा सर, कि आप जब कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, उसके साथ टेक्निकल को आपको सीखना होगा। सिर्फ फंडामेंटल वालों का क्या है ना, कुछ मिसकंसेप्ट रहता है फंडामेंटल में। अभी फंडामेंटल पे क्या है, आप जब स्टॉक 50 में रहेगा तो आप बता सकते हो फंडामेंटल भी मुझे वैल्यू लग रहा है 100 रुपया हो जाएगा, फंडामेंटल पे मुझे लग रहा है कि 200 रुपया हो जाएगा। व्हेन स्टॉक कम 200, आपको पता नहीं लगेगा कि भाई मुझे एग्जिट कर कब करना है। बुल मार्केट में तो घोड़ा भी भागता है, गाधा भी भागता है, दोनों चल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे आपको क्या है ना, यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत होगा। आपको दोनों चीज देखो, हम क्या है ना सर, हम लोग रिटेलर इन्वेस्टर है, तो हमको पता नहीं और कल किसने देखा है, कल मार्केट पे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। नोबडी नोस कल क्या होने वाला है। अगर कल पता लग जाएगा कि मार्केट पे क्या होने वाला है, तो मार्केट सेकंड डे बंद हो जाएगा। और मार्केट पे एक तो है, देखो एक चीज मैं हमेशा से बोलता हूँ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था 1980 पे, उसके बाद नया प्रेसिडेंट बना था अमेरिका पे 1923 पे। तो 1923 से 1929 पे क्या हुआ था, एक बुल रन चला था, बहुत बड़ा था स्टॉक मार्केट, ओवर ऑल ऑफ द वर्ल्ड बहुत इंक्रीज हुआ था, बहुत बढ़ गया था। 1929 पे क्या हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन इन वर्ल्ड, हमें बहुत ही बड़ा झटका लगा था वर्ल्ड को, एकदम वर्ल्ड मार्केट पे, यूएस को तो बहुत ज्यादा। 10 सालों तक मार्केट चला नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद मैं 1929 से पहले अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा तो क्या देखूंगा, 1637 में ट्यूलिप मेनिया का एक क्रैश आया था। तब क्या होता है, एक फूल जिसका भाव था 100-200 रुपया, लेकिन उस प्राइस को, मतलब एक इतना ज्यादा बबल हो गया था, बढ़ते 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 20 लाख तक चला गया था प्राइस। उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद 1929 पे द ग्रेट डिप्रेशन इन वर्ल्ड हुआ, उसके बाद मार्केट फिर खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया। उसके बाद क्या हुआ, 1970 पे थोड़ा एक बार मार्केट क्रैश हुआ था, हमें पता ही है। 1992 में जो स्कैम हुआ था, वो स्कैम 1992 में जो ना फेमस हुआ, 2020 में फेमस हो गया। तो हर्षद मेहता के टाइम में हमने क्या देखा, हर्षद मेहता के टाइम में हमने ये भी देखा कि मार्केट कितना ऊपर था, ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट खड़ा हो गया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट हमेशा से हिस्ट्री की रिपीट, आपको हिस्ट्री रिपीट करेगा सर। तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आपको तो ये बात हमेशा से क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।
2001 में क्या हुआ था, डॉट कॉम बूम हुआ था, सब सारे आईटी कंपनी भाग रहा था, वो जो केतन परीख का स्कैम सामने हुआ। उसके बाद जब नया गवर्नमेंट आया 2004 से लेके 2008 तक मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड पे गया। उसके बाद 2008 में क्या हुआ, द लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस इन वर्ल्ड, 2008 में द फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस क्या है, मतलब आज अगर आपके एक एचडीएफसी बैंक पे अगर आपका एक अकाउंट है, या फिर कोई भी बैंक पे अगर आप कोई भी पैसे आप रख के आए हो, तो रातों रात आपको खबर मिलता है कि भाई बैंक बंद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्सी हो गया, तो हो गया भाई। तो यही हुआ था 2008 में, द लेमन एंड ब्रदर द फेमस बैंक करप्सी हुआ था। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया था 2000। उसके बाद जीएसटी में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, नोटबंदी के टाइम थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, आप सब लोगों को पता है। 2020 में क्या हुआ, कोविड का क्राइसिस आया है। अब मतलब मुझे बताने में मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्राइसिस आने से एक हफ्ता पहले, मुझे पता नहीं है कौन किसने क्या बोला था, लेकिन मैंने बता दिया था मेरा चैनल पे, मेरा ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे, कि कुछ तो होने वाला है। जस्ट एक 1 वीक एगो मैंने बता दिया कुछ तो ऐसा होने वाला है। बिकॉज क्या है ना, एक वॉरेन बफेट सर का एक बहुत अच्छा स्टोरी है। स्टोरी क्या है सर, मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, प्लीज एक बार अगर आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, अब लोग समझ पा रहे हो, तो काइंडली एक बार लिख दो कि यस यस, टाइप ऑन कमेंट बॉक्स बिलो बिलो यस, आप सब लोग लिख दो एक बार यस यस। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो क्या है ना, देखो एक वॉरेन बफेट सर एक बार क्या है ना, जूते पॉलिश पॉलिश कराने में जाता है। तो जब भी जूते पॉलिश कराने में जाता है, तो उसके बाद जो जूते पॉलिश करता है, तो वो वॉरेन बफेट सर को क्या बोलता है कि वॉरेन बफेट सर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो राइट। तो वॉरेन बफेट सर ने बोला यस मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद जूते पॉलिश कराया, जूते पॉलिश कराने के बाद वॉरेन बफेट सर घर आ रहे थे चलते चलते, तो उन्होंने सोचा यार क्या बात है, एक जूते पॉलिश जो करता है उसको भी पता है मैं स्टॉक मार्केट पे अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट अभी ऊपर है, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर एग्जिट, अभी राइट टाइम होगा शायद मार्केट से एग्जिट निकलने का। तो उसके बाद वॉरेन बफेट सर निकल जाता है मार्केट से, एंड उसके बाद मार्केट जोर शोर से क्रैश हो जाता है। मतलब मोड़ा ले ये आपको, तभी मार्केट पे एग्रेसिव पोजीशन बनाना चाहिए जब मार्केट क्रैश हो, जब मार्केट ऊपर हो तब आपको हमेशा एग्जिट करना है, यही रूल है। सेकंड क्या है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। आप एक बड़ा ऑपरेटर नहीं हो, आपके पास बड़ा फंड नहीं है, हम सारे लोगों के पास 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे ही फंड होगा सबके पास, उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या है ना, हमें हमेशा जो स्मार्ट मनी है उनको फॉलो करना है, हमें स्मार्ट नहीं बनना भाई, हम तो स्मार्ट है ही नहीं मार्केट पे। हमेशा हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। अगर हमने स्मार्ट मनी को फॉलो कर लिया ना, तो हमें क्या होगा, हमारा पैसा ग्रोथ आने में टाइम नहीं लगेगा, और उसमें क्या है ना, आपको ट्रेंड आपको हेल्प करेगा पैसा बनाने में, ठीक है। तो यही एक बात है सर, आपको हेल्प करेगा, आपका फिनेंशियल जो मतलब गोल होगा आपको सक्सेस पाने के लिए। सब लोग बोलता है कि आप फॉलो करो टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, और एक चीज सर जो आपको पता है ना वो किसी को पता नहीं होगा। आप अपना रिस्क अपने हिसाब से आप पोजीशन साइज मैनेज करना होगा, एक एक फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग। मैं आज तो सब कुछ बता नहीं सकता, बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी, राजेश जी और कितना टाइम मुझे मिल सकता है राजेश जी? आप 15 मिनट्स और ले लो ओके प्रदीप। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो क्या है ना सर, अभी बहुत लॉन्ग में बात कर नहीं सकता, तो नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता था, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तो क्या है ना सर, यही चीज आपको समझना होगा कि आप टेक्निकल फॉलो करो, आप फंडामेंटल फॉलो करो, ओवरऑल आपको पैसा बनना चाहिए। और मैं हमेशा से यही बात बोलता हूँ कि सर देखो, मार्केट पे क्रैश हमेशा से आया है, आ रहा है, बाद में भी आएगा। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपका जो पैसा है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि सर आपका जिंदगी का कुछ तो वैल्यू है ही नहीं, यस, लेकिन आपका इमोशन का वैल्यू है। मैं हमेशा आपका इमोशन का वैल्यू दूंगा। अगर मैंने आपका इमोशन का वैल्यू दिया ना, तो आप जिंदगी में ग्रो भी करोगे, आपके पास पैसा भी आएगा। मैंने आपको एक चीज बताया, देखो पहले ही मैंने एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी पीपल नो वॉरेन बफेट, कितने लोग वॉरेन बफेट को जानते हो? आप सब लोगों ने बोला हाँ सर मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो कि नहीं, वॉरेन बफेट रिचेस्ट पर्सन है इसलिए आप जानते हो। रिचेस्ट पर्सन क्यों बना भाई? लाख अच्छा था, लाख सब लोग अर्ली एज में आता है मार्केट पे, लेकिन मार्केट पे सस्टेन कर नहीं पाता है। आपको इस मार्केट पे अपकमिंग 50 सालों तक राज करना है, राज आपका सेकेंड जनरेशन को भी लाना, मतलब इस मार्केट पे आना है। आप 100 करोड़ मतलब इस मार्केट पे रख के जाओगे, उसके बाद 100 करोड़ को उनको 200 करोड़ 500 करोड़ पे लेके जाना है।
तो इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ लर्निंग करना होगा, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आके आपको सीखना होगा। अगर आप फंडामेंटल अच्छे तरीके से जानते हो तो दिस इज वेरी गुड, लेकिन टेक्निकल एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है जो आपको सीखना है। आज दुनिया आपको क्या सिखाएगा? दुनिया सर आपको सिखाएगा टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक देख लो, मोरुबुजू देख लो, आप इवनिंग स्टार पैटर्न देख लो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न देख लो, आप काप एंड हैंडल पैटर्न देख लो, आप फ्लैग पैटर्न देख लो, कुछ भी एनीथिंग आप देख लो। लेकिन इसमें क्या होता है सर, इसमें भी लिमिटेशन है, इसमें भी लिमिटेशन है। ब्रेकआउट भी फेलियर होता है, आपको ब्रेकआउट समझना होगा कब फेलियर हो रहा है। वॉल्यूम तो आ सकता है, आपको पता हो रहा है कि बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, सही सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम भी फेलियर होता है, वॉल्यूम में भी। तो टेक्निकल में भी फेलियर होता है, लेकिन टेक्निकल पे क्या है, एक ऐसा पैरामीटर मैंने खुद से बनाया है जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं मेरा स्टूडेंट को भी गाइड करता हूं। तो उसके वहां पे क्या है ना, मैंने ऐसा चीज बता दिया, ऐसा चीज मैंने सिखा दिया, मैंने ऐसा चीज, मैं कुछ भी कैंडल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं इजी बात करता हूँ एकदम, मतलब मुझे डेप में ज्यादा बात समझ में नहीं आता कि आप ये देख लो वो देख लो। फंडामेंटल में जो भी मैंने आपको बताया, आप आई होप अपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, बस वही चीज आप जाओ। आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आपको करना भी नहीं चाहिए ना, आप मेहनत क्यों करोगे? आप अब देख लो, जस्ट आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, कंपनी ये बिजनेस कर रहा है, कंपनी कुछ भी कर रहा है, कंपनी का ये प्रॉफिट है, सेल्स, अच्छा टेक्निकली ये है, अच्छा तो फिर स्टॉक ना क्या है, चलेगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। और एक बात है, टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत आपको हेल्प होगा। एंड क्या है सर, मैं आपको एक स्क्रीन अभी शेयर करने वाला हूं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मेरा खुद का चैनल है। एंड राजेश सर ने पहले ही बता दिया था कि प्रदीप भाई वेस्ट बंगाल से आता है, कि इसीलिए ना मेरा जो वीडियोस वगैरह है सब कुछ बंगाली में है, लेकिन मैं अब धीरे धीरे मैं इसको हिंदी में नया चैनल ओपन करके मैं हिंदी में भी शूट करूंगा। लास्ट आप मेरा चैनल जाओ, मेरा फेसबुक प्रोफाइल नेम है प्रदीप हलदर, ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन, कुछ भी प्रोफाइल पे आप चले जाओ, जो भी मैंने रिसर्च बता के आया था लास्ट 5 महीना में, 6 महीना पे स्टॉक 100% ग्रोथ हुआ सर। मतलब ये जो बात बता रहा हूँ सर, हवा हवा में बात मैं नहीं करता, मैं डायलॉग नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लग रहा है, आई थिंक। मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या हुआ है, ठीक है? उसके बाद अभी भी जो बोलूंगा क्या होगा तो कल का बात होगा, आपको खुद भी पता लग जाएगा। और मार्केट क्या है ना, मार्केट पे सर कोई भी चौधरी नहीं है यहाँ पे। अब मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे सीखेंगे, मतलब सब लोग सबसे सीखना चाहिए हमेशा। एक लर्निंग जो हैबिट है उसको हम मतलब क्या है ना, हमेशा कंटिन्यूअसली करना चाहिए। तो देखिए सर, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ आज अभी भी। मैं अभी चला आया क्या है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो यूट्यूब चैनल में क्या है, मैं यहाँ पे एक शेयर बोला था जिसका नाम है जेके सीमेंट। मैं बंगाली में बोला था, शायद आपको बंगाली समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप स्टॉक का प्राइस का भाव देख लो। यहाँ पे मैं मतलब बहुत सारे वीडियो है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में दिखाऊंगा। आप एक बार सुन लो। একটা স্টক, যে স্টক এই ক্রাইসিসের মধ্যে, যেখানে এতগুলো কোম্পানি, যে সিমেন্ট সেক্টরের মধ্যে আমরা দেখলাম এসিসি সিমেন্ট, শ্রী সিমেন্ট, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট শুধু দিচ্ছে এবং রিট্রেসমেন্ট করছে এবং হাই দিচ্ছে। কিন্তু আবারও আপনাদের বলবো, আজ থেকে 6 মাস আগে যে হাই দিয়েছে সেই হাইয়ের উপরে কিন্তু এখন সাকসেসফুলি সাস্টেইন করছে। तो इसमें बेसिकली मैंने बताया था आज से कुछ महीना पहले जेके सीमेंट का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है। चलो आज का जेके सीमेंट मैंने बताया था 1650 में, आज जेके सीमेंट का प्राइस मैं देख के आता हूँ। जेके सीमेंट, ओके, जेके सीमेंट का मैं प्राइस में आ गया, मैं वीकली चार्ट निकाला, आपको दिखेगा जेके सीमेंट अभी 28 में ऑलरेडी 3000 का हाई लगा दिया है। और मैंने पीक किया था स्टॉक को एकदम यही जोन से मैंने पीक किया था, और स्टॉक तो कभी रुका ही नहीं, अभी चल रहा है। तो मैंने कैसे किया था सर? बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल पे आपको पैटर्न फॉलो करोगे ना, तो दुनिया जो कर रहा है आप वही करोगे, आपको दुनिया से कुछ हटके करना होगा। तो ये मैंने दिखाया जेके सीमेंट। चलो और एक स्टॉक है जो मैंने, मतलब ये सब कुछ ना सर लाइव एविडेंस है आपके सामने। मैंने एंजल ब्रोकिंग बता दिया था, देखो 295 में एंजल ब्रोकिंग बता दिया था लाइव वीडियो में। मुझे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ऐसे वीडियो में आके कौन आपको बताएगा ओपनली कि स्टॉक में ये हो रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, एंजल ब्रोकिंग এ জাস্ট লিস্টিং হওয়ার পর থেকে আমরা দেখেছি যে ডাউন সাইড ছিল, এখন বেশি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার মতো টাইম নেই। জাস্ট 295 লেভেল ক্রস হচ্ছে অ্যাঞ্জেল ব্রোকিং, 296 এর উপরে যদি ক্লোজিং দিতে পারে, এবং সব থেকে বড় কথা অলরেডি 20% আজকে মুভমেন্ট দিয়ে দিয়েছে, অলরেডি 20% মুভমেন্ট কিন্তু রয়েছে, 298 এর আপার সার্কিট আজকে কিন্তু রয়েছে।
তো বেসিক্যালি আজকে তো হয়তো বেশি বাড়বে না, তো এই লেভেলেই থাকবে। যদি 296 উপরে মেনটেন করে গাইস এঞ্জেল ব্রোকিং শেয়ার, কারণ অনেকে ভাবতে পারে আমি হয়তো बस ये जो सर मैं अभी बोला है यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के मैंने बोला था बंगाली में, तो आप लोगों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आ सकता आई थिंक, तो मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। मैंने एंजल ब्रोकिंग बोला था सर, एंजल ब्रोकिंग 295 में, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग का शेयर आज से बस कुछ महीना पहले ही मैंने बोल दिया था। देखो आज एंजल ब्रोकिंग का भाव कितना है सर, 800 में है, 290 पे बोला था, आज 800 का भाव है। ऑलरेडी 1000 हाई देके आया है, 1000 हाई देके आया है, 950 965 ऑलरेडी हाई है। मतलब कितना परसेंट स्टॉक ने गेन किया। चलो और एक कंपनी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग हो गया, जेके सीमेंट हो गया, गुजरात गैस, गुजरात गैस वन मोर स्टॉक मैंने लाइव आके रिकमेंड किया था स्टॉक का पैटर्न के बारे में। चलो इसको भी हम देख लेते हैं, देखे আসি। গুজরাট গ্যাস সম্পর্কে দেখুন, এই গুজরাট গ্যাস হচ্ছে প্রধানত একটা গ্যাস এরা সাপ্লাই করে, খুব ভালো কোম্পানি, এবং এই স্টকে কিন্তু একটা तो मैंने गुजरात गैस भी सर बताया था आपको। यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 317 प्राइस था। कब डेट है, नवंबर में। चलो आज देख के मैं आता हूँ गुजरात गैस का प्राइस क्या है। चलो गुजरात गैस 397 में बताया था, आज ओ माय गॉड 643 प्राइस, ऑलरेडी 700 का हाई लगा क्या है। फिर से स्टॉक डबल, मतलब हो गया आपका पैसा डबल हो गया। तो ये कोई हवा हवा पे बात नहीं है सर, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसको मैंने प्रूव करके दिखाया। फिर से और एक स्टॉक है, हम फेमस स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो फिर से एक बार हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे देखते हैं मैंने क्या बताया था। 141 এর লেভেলে কিন্তু সাপোর্ট নিয়েছে, সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু ওখান থেকে বাউন্স করছে, এবং যখন এই লেভেলে ছিল সামথিং এই লেভেলে 180 লেভেলে এখান থেকে সাপোর্ট নিয়ে উপরে উঠছিল। आपको यहाँ पे दिख रहा है फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने 250 के आसपास बताया था। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस सर आप देखो, आपको दिख जाएगा। और ये सारा कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ आप खुद भी जाके देख के आ सकते हो मेरा चैनल से। जो अभी मेरा चैनल फेसबुक अभी 428 ऑलमोस्ट 450 आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पैसा डबल। मैंने बोला था लक्ष्मी मशीन, আমি 7 সেপ্টেম্বর 2020 এটা লাইভ স্ট্রিম করেছিলাম। लाइव स्ट्रीम করে लक्ष्मी मशीन मैंने बताया था यहाँ पे 3677 प्राइस था। लक्ष्मी मशीन का आज प्राइस देख लो सर आप, आज से कुछ महीना पहले ही बता दिया था। लक्ष्मी मशीन का आज प्राइस देखो 6100, ऑलरेडी 7800 हाई लगा के आया है, 3600 पे रिकमेंड किया था, फिर से पैसा डबल। उसके बाद जेके सीमेंट भी बता दिया था। केएम सुगर वन ऑफ द बेस्ट माय फेवरेट स्टॉक केएम सुगर, अब देख लो मैंने केएम सुगर की अभी कुछ दिन पहले ही, अभी एक मंथ पहले का रिकमेंडेशन है केएम सुगर, ठीक है। थर्ड टाइम ऑलरेडी इसके 6% बेरे रहे थे, चल रहे सर केएम सुगर। और एक बात मैं केएम सुगर का बात जब बताता हूँ, मैं अभी कुछ टीवी चैनल में भी हूँ, तो यहाँ पे मैंने केएम सुगर एचएफसीएल भी बताया। आप एक बार मैंने केएम सुगर पे इसको मैंने हिंदी में भी बताया था जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा था। तो केएम सुगर भी आप एक बार देख लो मैंने क्या बताया था। 14.70 से ट्रैक कर रहा हूँ, 14.70 अभी मैं पहले नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है केएम सुगर। मैं बेसिकली इतना लो प्राइस पे कोई शेयर देता नहीं हूँ, लेकिन इस स्टॉक में कुछ अलग सा ही बात है। मैक्सिमम सारे सुगर कंपनी भाग गया, लेकिन एक ही कंपनी अभी तक चला नहीं है, और हमारा कम जो कंपनी चला। आप वीडियो देख लेना, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ। केएम सुगर बताया था 14 में, अभी देखो केएम सुगर का प्राइस क्या है। आप केएम सुगर का प्राइस है 31, ऑलरेडी 40 का हाई लगा के आया। स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था मैंने बता दिया था, ऑलमोस्ट 100%, एक महीना पे 100% का रिटर्न, 100% का रिटर्न। मैंने वन मोर स्टॉक बताया था एचएफसीएल, और ऐसे सर बहुत स्टॉक एग्जांपल है, लेकिन मैं और एग्जांपल अभी यूज नहीं करूंगा, टाइम हम बहुत ही कम है। तो और एक लास्ट स्टॉक है एचएफसीएल। मैंने रिसेंटली आज से 20 दिन पहले, ओनली फॉर 20 दिन पहले मैंने एचएफसीएल बता दिया था लाइव। ऐसे लैंग्वेज कोई यूज करता नहीं है बेसिकली, कोई न्यूज चैनल में आके कि स्टॉक बाई कर लो, इसके ऊपर आग लग जाएगा, ये लग जाएगा। बेसिकली मैं अभी यंग हूं तो ये सब कुछ हो जाता है हमसे, तो देख लो। बट मैं उसको थोड़ा स्थगित कर रहा हूँ, वो मैं बाद में लूंगा आपसे, वो जाते आते मैं इंडेक्स का व्यू लूंगा। पहले मैं आपसे जरा शेयर्स का व्यू लेना चाहता हूँ। आप मेरे को जरा शेयर्स बताइए पहले, आपकी लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स? शेयर जो मैं अभी देख रहा हूँ मेरा वॉच लिस्ट पे एक शेयर है, वो है HFCL स्टॉक जो है अभी। HFCL शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी
बनाता है बेसिकली कंपनी, तो कंपनी अभी चल रहा है 33.25 रेंज चल रहा है। आज भी हाई लगाया था 34.80, लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 35 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है बहुत दिनों से। उस जो 35 का रेंज है वहां पे बहुत रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मेरा मानना ही है अगर एक बार 35 के ऊपर आधा घंटा भी टिक गया ना सर, स्टॉक यहाँ से 38, 40, 45 इनफैक्ट डबल भी हो सकता है इतना। तो मैंने बोल दिया HFCL डबल भी हो सकता है। आज से 20-25 दिन पहले देखो HFCL का क्या रिएक्शन। HFCL देखो 35 में बोला था, 72 हाई देके आया। अभी यहाँ पे मेरा लिखा भी है 35 है बाइंग जोन, स्टॉप लॉस 60 प्लस, टारगेट भी अचीव हो गया। तो मैं अभी इस सब से आपको क्या बताना चाहता हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। स्टॉक मार्केट पे क्या है, स्टॉक मार्केट पे क्या है सर, स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे एनालिसिस बताएंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे पैरामीटर्स में बताएंगे, लेकिन आपको देखना है कि मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है। इफ यू आर ट्रेडर, आपको एक ट्रेडिंग माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट रखना चाहिए। और कहना सर मार्केट पे काम करने के लिए हमेशा आपको ना एक कॉन्फिडेंस चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस आप कभी भी काम नहीं कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा माय डियर फ्रेंड्स आपको जब आपके पास नॉलेज होगा, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होगा। अभी देखो बात क्या है, मैं आपको ऐसा भी कुछ सिखा दूंगा कि आपको पता ही नहीं लगे, आपको समझ में ही नहीं आए, तो आपको पता नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है। आपको ऐसे तरीके से कुछ चीज सीखना होगा जो आपको क्या है, आपका जो रिसर्च में, रिसर्च क्वालिटी में, मैं आपको अभी 10-15 स्टॉक दिखाई दिया जो मैंने लास्ट 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो बताया था, डबल 100%, 200% ऐसा हो गया। ऐसा तो हजारों लिस्ट है। जब भी मैं स्टॉक कोई बताने में लग जाता हूँ ना चैनल में, तब तो स्टॉक सर्किट लग जाता है। सर्किट ऐसा बहुत सारे स्टॉक है। तो बेसिकली मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही, मैं जब कॉन्फिडेंस के बात बोलता हूँ ना, तब एक ही चीज मेरे को, एक स्टोरी याद आ जाता है। एक ट्रेनर था, उसके पास क्या था, एक ड्राइवर भी था। तो जो ड्राइवर है हमेशा ट्रेनर के साथ रहता था। तो किसी दिन ट्रेनर का जो काम था ना, हमेशा अलग अलग कंट्रीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, ट्रेनिंग डिलीवर करता था। तो किसी दिन वो ड्राइवर ने पूछा कि सर आप तो हमेशा से बहुत जगह पे क्या करते हो ना, आप बहुत जगह से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, तो एक काम करो ना, मैं आपकी जगह ट्रेनर बन जाता हूँ और आप ड्राइवर बन जाओ। आप बहुत जगह पे आप ट्रेनिंग देते हो, तो एक काम करो, मैं ट्रेनर बन जाता हूँ, आप ड्राइवर बन जाओ। यस। तो ट्रेनर ने बोला अच्छा तू तो ड्राइवर है, तू कर लेगा, सेशन डिलीवर कर देगा? तो बोला हाँ सर मैं कर लूंगा। तो अभी क्या है ना, अभी नया एक जगह पे गया, नया जगह पे जाने के बाद जो ड्राइवर था उन्होंने ट्रेनर हो गया, और जो ट्रेनर था उन्होंने ड्राइवर हो गया। तो जो ड्राइवर था जबरदस्त सेशन, 2-3 घंटे से बहुत सारे मीटिंग सेमिनार बहुत कुछ कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, बहुत सारा मीटिंग देने के बाद क्या होता है, जो एक बंदा खड़ा होता है, खड़ा होके एक क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करने के बाद बोलता है कि सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो जो ड्राइवर था उसके पास तो टेक्निकल नॉलेज था नहीं, वो तो रट्टा मार के आया था, रट्टा मार के बोल रहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तो बोल रहा है, मतलब जो ट्रेनर सच के गया था स्टेज पे, वो बोल रहा है कि अच्छा मैंने 2 घंटा से क्या किया। बोला सर बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा सेशन किया, समझ में आया? हाँ समझ में आया। अच्छा सब कुछ सही था ना? बोले हाँ सब कुछ सही था, समझ में आया, जबरदस्त था, सब कुछ सही था, समझ में आया। तो भाई ये क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है यार। तो जो ट्रेनर था ऊपर में, ओरिजिनल जो ट्रेनर था ड्राइवर के भेस में था, उनको बुलाया एंड ही कम स्टेज एंड ही डिलीवर जो टेक्निकल जो क्वेश्चन था उनको सॉल्व किया। तो लाइफ में सर आपको कॉन्फिडेंस भी ऐसा होना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट पे आए हो, आपको ना, आपको क्या है, प्रॉपर आप ट्रेडिंग करो तो आपको ट्रेडिंग मेंटेलिटी रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी रखना होगा, एंड आपको कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो आप करना होगा।